Now, today we will understand why solids are solid, liquids are liquid, and gases are gases. Yesterday we understood that what is matter, and we understood why all the states solid, liquid, and gases have been kept together. उसमें हमने चार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, चार बातें पढ़ी थी. Matter is made up of number one particles, tiny particles. That particles are very so small. Number two, there is interparticle space between every space state of matter. Number three, there is interparticle force of attraction between every state of matter. And number four, particles are continuously moving. Now you just go through the activities which are mentioned in your NCERT book. When we'll meet, we'll discuss all those activities again. But right now we have to understand these four characteristics in our mind. That is why all these things together are called matter. Solid, liquid, and gases are called matter. Now today we'll differentiate between them, how solids are solid, how liquids are liquid, and how gases are gases. Why they are different, that we'll understand. Now, but before that, I'll make you acquainted with 5 terms. One is called kinetic energy. Kinetic energy is what? Energy possessed by body or object or particles due to its motion. Anything in motion, anything which is moving, that is kinetic energy. Second thing is compressibility. Compressibility is what? अब मान लो मेरे हाथ में स्पॉन्ज है, उस स्पॉन्ज को मैं ऐसे दबा देता हूँ, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है. I will say that it is compressible. I have a duster. Can I compress this duster? No. Compressibility का होता है tendency to reduce the volume of that object. That is called compressibility. Solids के अंदर compressibility बहुत कम होती है. Solids को बड़ी मुश्किल से compress कर पाते हैं. क्यों कर पाते हैं वो समझेंगे. तो compressibility is what? It is a tendency due to which volume of the substance can be reduced by applying force. फोर्स लगाएं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा. अब जैसे बैलून है, बैलून को मैं दबा दूंगा. वाटर बॉटल मेरे हाथ में, ये बॉटल है, अभी ये कंप्रेसिबल है क्योंकि इसके अंदर एयर है ज़्यादा, ठीक है. लेकिन अगर ये अगर फुल होती तो उसको वो कम कंप्रेस हो पाती, ठीक है. तो कंप्रेसिबिलिटी इज व्हाट? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच वी कैन रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द गिवन थिंग. थर्ड थिंग इज rigidity. Rigidity क्या होता है? It is the property due to which body or object opposes the change in shape. Change in shape को oppose करता है. ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? Rigidity. Clear to you? Fourth is fluidity. Fluidity क्या होता है? It is the tendency to move of things, matter at its own from one place to another place. अब ये टेबल यहाँ पर रखा है, टेबल पड़ा है मेरे पास. क्या वो टेबल एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा अपने आप? नहीं चलेगा. कोई ऑरेंज का ऑब्जेक्ट रखा है अपने आप चला जाएगा? नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज सॉलिड. लेकिन अगर मैं पानी यहाँ गिरा देता हूँ नीचे तो पानी अपने आप चलना शुरू हो जाता है, बिकॉज इट पोजेसेस टेंडेंसी टू मूव एट इट्स ओन. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज फ्लूइडिटी. एंड लास्टली डिफ्यूजन. अगर मान लो मैं यहाँ पर एक परफ्यूम स्प्रे कर देता हूँ और परफ्यूम की स्मेल पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है. ये तो नहीं कि मुझे परफ्यूम यहाँ स्प्रे करने के बाद वहाँ भी आना पड़ेगा, वहाँ भी आना पड़ेगा, वहाँ भी आना पड़ेगा, अलग अलग प्लेसेस में आना पड़ेगा रूम. नो, नॉट रिक्वायर्ड. बिकॉज जो परफ्यूम की जो पार्टिकल्स हैं, वेपर पार्टिकल्स हैं, दे आर इंटरमिक्सिंग विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर. दिस प्रॉपर्टी ऑफ mixing of particles of two different kinds of matter at their own is known as diffusion. Diffusion is what? Intermixing of two or more kinds of particles, different kinds of particles of different kinds of matter at their own is known as diffusion. बड़ा सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ डिफ्यूजन का आपको. किचन में कुछ भी बन रहा हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी फेवरेट डिश राजमा बन रहे हैं, तो आप किचन से बाहर से पता लग जाता है, बिकॉज उसके जो एरोमा के पार्टिकल्स हैं वो अपने आप एयर के अंदर मिक्स हो गए. इंसेंस के कमरे में एक साइड मिला देते हैं, पूरे घर में उसकी फ्रेगनेंस स्प्रेड हो जाती है.
because its particles are moving at its own. This is known as diffusion. So these 5 terms will be using in our discussion from time to time. That is why I have introduced these terms. Clear of you? Now we'll understand solids, liquids and gases. उसके हमारे जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट विच विल डिस्कस इज पार्टिकल्स, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, पैकिंग ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या था? हाउ पार्टिकल्स आर पैक्ड। मैं आपको सिंपल सी एक इमेजिनेशन करता हूँ कि एक पैसेंजर बस है, उस बस के अंदर लेट अस से, चलो बस का भी क्या, आप सिंपल अपनी कार की इमेजिन करो। आपकी कार में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 5। और अगर उस कार में जबरदस्ती से 10-12 लोग बिठा दें तो क्या हिलजुल पाओगे? हिलजुल पाओगे, बस इधर उधर वाइब्रेट नहीं कर पाओगे, सांस नहीं पाओगे। यू विल बी एबल टू ब्रीथ बट यू विल नॉट बी एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। So that is the case with solid. In solids, particles are very tightly packed. In solids, particles are very tightly packed. लेकिन कार की कैपेसिटी 5 की है और आप 3 पैसेंजर बैठे हैं। मान लो एक आप आगे ड्राइव कर रहे हैं, 2 लोग आप पीछे बैठे हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है आप चेंज कर लेते हैं एक जगह दूसरी जगह। थोड़ी देर बाद मम्मी अभी सीट पे आ जाएगी साथ वाले में, आप सीट चेंज कर सकते हो, यू कैन मूव। सिमिलरली इज इन द लिक्विड्स। इन लिक्विड्स पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड्स, बट इन गैसेस दिस पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, वेरी लूजली पैक्ड। इट इज जस्ट लाइक कि मान लो ये 40 सीटर बस है और उसके अंदर सिर्फ 4 पैसेंजर्स हैं। Or diagrammatically, I can, if you want, I want to show. This is the case with solids. Particles are very tightly packed. Liquids के अंदर particles packed हैं like this, but in gases they are very loosely packed. Second thing is interparticle space. As you can see, in solid interparticle space is very very less. It is least, बहुत कम होता है. Here it is maximum. Interparticle space is much more. But here interparticle space is less than gases, but more than solids. In between. Then comes interparticle force of attraction. आप एक टेबल पड़ा है, अगर आपको टेबल को ब्रेक करना है तो यू हैव टू अप्लाई लॉट ऑफ फोर्स, यू हैव टू यूज हैमर और सम ऑब्जेक्ट। आपको वॉल में से निकलना है तो वॉल को पहले तोड़ना पड़ेगा या उसके अंदर कैपेसिटी बना होना चाहिए। ये तो नहीं कि आप वॉल में जाओ, वॉल में निकल जाओ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके पार्टिकल्स की, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड वेरी वीक इन गैसेस। आप एयर के अंदर हमें आप आसानी से हाथ मूव कर सकते हो, चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो आप स्विमिंग पूल में है, पानी यहाँ तक आके, can you move with the same ease as we are moving in the air? Here? No, we will not be able to move as easily as we are moving here. Because in air, we are in gases. In gases, interparticle force of attraction is weak. Space is more. And as their particles are loosely packed. Is it clear? Whereas gases में, in liquids, this interparticle force of attraction is more than gases but less than solids. Clear up to this? Any doubt up to this? So up till now I have discussed 3 points with you. Number 1,
packing of particles, number 2 interparticle space, number 3 interparticle force of attraction. Fourth thing is volume. ये बुक है मेरे हाथ में, इस बुक को मैं इस टेबल में रखूँ, दूसरे टेबल पे रखूँ, आपके बैग में रखूँ, आप कहीं पर भी रखो अपने घर में, क्या ये किसी जगह पर कम स्पेस देगी, किसी जगह पर ज़्यादा स्पेस देगी? नो, इट विल टेक सेम शेप। अब आपका घर का एक मान लो एक बेड है, आप उसको एक जगह ले आके रखें, दूसरे रूम में ले आके रखें, तो बेड को उतने स्पेस देगा, बिकॉज इट इज सॉलिड। जो सॉलिड्स का वॉल्यूम फिक्स है, कोई भी कंटेनर है, आप एक जगह दूसरी जगह लेके जाओगे, उसमें उतना एक स्पेस आपको बाई करेगा। तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज फिक्स्ड। अब आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक इज व्हाट? लिक्विड। लेकिन उसी कोल्ड ड्रिंक को अगर आप मान लो 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक को बकेट में डाल दो, क्या 20 लीटर हो जाएगी? या कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर वाली 4 ग्लासेस में डालो, कितनी आएगी? 500 या 500 ml। ये तो नहीं कि 2 लीटर की वो 10 लीटर हो जाएगी या 20 लीटर हो जाएगी, या 2 लीटर की 1 लीटर रह जाएगी। उस 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक को आप चाहे किसी भी कंटेनर में डालो, किसी भी चीज़ में डालो, उसका वॉल्यूम तो 2 लीटर ही रहेगा। सो वॉल्यूम इन केस ऑफ लिक्विड्स इज आल्सो फिक्स्ड, बट इन केस ऑफ गैसेस वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड। सेम गैस, एक आपके जो घर में एलपीजी का सिलेंडर होता है, 14 kg गैस होती है उसके अंदर, लिक्विफाइड होता है, लेकिन उसको अगर आप ओपन कर दें तो पूरे रूम में स्प्रेड कर जाएगी, और बाहर जाके ओपन कर दें तो पूरे बहुत बड़े स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी, बिकॉज गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ गैसेस। नेक्स्ट इज शेप। अब सॉलिड को कहीं पर भी ले जाके रखो, सॉलिड की शेप वही रहती है। अगर आपके पास कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, वो स्फेरिकल ही रहेगा। अगर वो रेक्टेंगुलर क्यूबाइडल शेप ऑब्जेक्ट है तो क्यूबाइडल ही रहेगा, सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक कोन लिया और कोन आपके हाथ में आते ही वो सिलेंड्रिकल या कोई और शेप बन जाएगा। नो, जब तक वो सॉलिड है उसकी शेप सेम रहेगी। लेकिन लिक्विड की शेप हम चेंज कर सकते हैं। एक पानी का गिलास में डालोगे तो गिलास की शेप होगी, कटोरी में यू पुट इन द स्मॉल बाउल, उसकी बाउल की शेप ले लेगी, जिस भी पैन में डालोगे उसकी शेप ले लेगी। तो लिक्विड की जो शेप है वो फिक्स नहीं है, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं, दिस इज फिक्स्ड नॉट फिक्स्ड। अब वही गैस एक बैलून में फिल कर लो, वही गैस आप किसी दूसरे बैलून में फिल कर लो, अलग इसकी शेप होगी, तो गैसेस की शेप भी फिक्स्ड नहीं है। So solid is what? That state of matter in which volume is not fixed, neither volume nor shape. But in liquids, volume is fixed, shape is not fixed. In solids, both are fixed. And rigidity is what? Tendency to oppose the shape in shape, oppose the change in shape. अब solids के अंदर देखो मैंने क्या था, particles are tightly packed. उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, स्पेस है ही नहीं उनके अंदर। अब जिसके अंदर ऑलरेडी स्पेस नहीं है, मान लो एक बस के अंदर 40 लोगों की कैपेसिटी है और वहाँ 80 लोग पहले बैठे हुए हैं, हम कहेंगे और हो जाओ अंदर, और हो जाओ, और आगे हो जाओ, विल बी एबल टू मोर कंप्रेस? नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी कैन फर्दर चेंज, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, सो दे कैन नॉट, देयर शेप कैन नॉट बी चेंज, देयर वॉल्यूम कैन नॉट बी चेंज इजीली। So this is called rigidity. So they have maximum rigidity. लेकिन लिक्विड्स में रिजिडिटी नहीं होती। आप लिक्विड यहाँ डालो, अपने आप से फ्लो करना शुरू कर देगा। उसकी अब जो चेंज करने की कैपेसिटी है, क्योंकि उनके अंदर जो पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, दे ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट इज वाई दे पोजेस फ्लूइडिटी, इट स्टार्ट्स मूविंग इट इटसेल्फ। लेकिन गैस का सिलेंडर खोल के आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, विद इन नो टाइम इट स्प्रेड्स। आप परफ्यूम स्प्रे करें, पूरे कमरे में उसकी स्मेल शुरू हो जाती है। आप इंसेंस स्टिक को बंद करें, हिट करें, इमीडिएटली होल फ्रेग्रेंस ऑफ दैट विल स्प्रेड इन होल एरिया, बिकॉज उसके पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, दे ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। खाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रीजन
So but this is, they are highly rigid, they possesses fluidity, rather fluidity, and it possesses maximum fluidity. अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मान लो मैं आपके हाथ में स्पॉन्ज दूँ, स्पॉन्ज को आप दबा देते हो, स्पॉन्ज को आप दबा देते हो, कहोगे तो स्पॉन्ज सॉलिड नहीं होना चाहिए? इफ आई आस्क यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिक क्या मतलब है? कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. समटाइम वी आस्क स्पॉन्ज दो compressible yet it is called solid. Why? When we compress the sponge, air present in between the particles moves out, right? But when we release that force, our force वापस हटा लेते हैं, sponge takes its shape back. So what is the tendency of solids? To oppose the changing shape. They oppose the changing shape. Again, air gets entrapped in it. So that is why sponge, though it is compressible, but still it is called solid. So what answer you will give? That when sponge is compressed by applying the force, air present between the pores moves out. But when that force is withdrawn, it regains its shape. It has tendency to regain its shape. This tendency is known as rigidity. That is why sponges are called solid. That is characteristics of solid. अभी शेप की बात चल रही थी. शुगर को क्या बोलोगे आप? शुगर या राइस को, कि सॉलिड है कि लिक्विड है? मैंने क्या बोला था? सॉलिड की शेप फिक्स है. लेकिन क्या राइस, अगर शुगर मान लो आपने कप में डाली तो कप की शेप ले लेगी. अगर शुगर को आप प्लेट में डाल दोगे वही शुगर प्लेट की शेप ले लेगी. तो क्या मैं उसको सॉलिड नहीं बोलूँ? अरे भाई, उसके जो इंडिविजुअल क्रिस्टल्स हैं, देयर शेप इज सेम, उनकी शेप चेंज नहीं हो रही. So that is characteristics of solid. That is why sugar should be called solid only. Next is compressibility. आपके पास बैलून है, आप बैलून को दबाते हो, दब जाता है. लेकिन उसी बैलून के अंदर अगर वाटर फिल हो, क्या आप उसको दबा पाएंगे? नहीं दबा पाएंगे. You will not be able to compress it. तो गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है. आप सेम गैस हम एक 14 kg के सिलेंडर में फिल कर देते हैं, 14 kg गैस हम बहुत बड़े सिलेंडर में भी पैक कर सकते हैं. बिकॉज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, देयर वॉल्यूम कैन बी रिड्यूस. कंप्रेसिबिलिटी इज व्हाट? टेंडेंसी टू रिड्यूस द वॉल्यूम. सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. सो व्हाट आई से, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, बट लिक्विड्स दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल. अब अगर मान लो पानी की बॉटल में ऊपर तक पानी भरा, थोड़ा बहुत स्पेस और दबाएंगे, दबेगा. इट विल बी कंप्रेस, लिटिल कंप्रेस, बट इट विल नॉट बी दैट कंप्रेस्ड एज गैसेस कैन बी. सो लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल. लेकिन वही अगर सॉलिड हो, सॉलिड को दबा सकते हैं, उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. राइट ना, फॉर एग्जाम्पल आप 3 सिरिंजेस लीजिए. एक सिरिंज में आप सिरिंज में आ यू कैन टेक सिंपल योर पिचकारी जो आप गोली की टाइम यूज़ करते हो, या सिरिंज ले लो. ठीक है, एक पिचकारी में या एक सिरिंज में आप क्या डाल देंगे? लिक्विड, कोई भी लिक्विड डाल लो. एक में स्टोन्स डाल लो, चॉक डाल लो, कोई भी छोटे मोटे जो भी आपके घर में सॉलिड अवेलेबल हो, शुगर डाल लो, राइस डाल लो, और एक को खाली रहने दो. जब तीनों के पिस्टन को कंप्रेस करोगे, you will find जिसमें एयर थी, that can be easily compressed, that can be easily moved, that syringe can be easily moved. But in which liquid is there, उसको compress करना थोड़ा सा मुश्किल होगा as compared to solids, gas, as compared to air. But as compared to liquid, it will be little easier. But when जब आप गैस वाले को जिसके अंदर गैस है, उसको जब कंप्रेस करोगे तो उसको कंप्रेस करना सबसे आसान होगा. लिक्विड वाले को और मुश्किल होगा, और जिसके अंदर आपने स्टोन्स डाले उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा. तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, एंड सॉलिड्स आर all totally incompressible. They cannot be compressed. Highly incompressible. Am I clear? Then comes density.
जनरली सॉलिड की डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कितने हल्के हल्के भारी, दिस काइंड ऑफ थिंग विच वी यूज। अब मान लो कॉटन है और कॉटन की डेंसिटी कम होती है, आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी को आप उठाते हैं उसका कितना मास है और कितना उसका उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, इस रेशियो को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। सॉलिड्स की डेंसिटी जनरली हाई होती है, लिक्विड्स की उससे कम होती है, एंड गैसेस की लीस्ट होती है। क्यों? उसके पार्टिकल्स स्प्रेडेड है, एक दूसरे से दूर है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मैंने आपको क्या बताया था, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल एट देयर ओन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सॉलिड्स आप कोई भी एक दूसरे के ऊपर दूसरे मिक्स नहीं होते आसानी से, तो सॉलिड में जो डिफ्यूजन के एग्जांपल्स हैं दे आर वेरी वेरी रेयर, येट दे आर देयर बट वेरी वेरी रेयर। अगर आप कोई दो मेटल के पीसेस को टाई करके स्ट्रांगली, अच्छे से स्ट्रांगली टाई करके बहुत साल रखोगे, तब देयर इज ए चांसेस दैट वेरी लिटिल डिफ्यूजन विल टेक प्लेस। अगर मान लो हम क्लास में चौक से कुछ लिख के छोड़ देते हैं और 2-3 महीने बाद देखते हैं, तो उसको थोड़ा सा रब करना मुश्किल होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ ये जब पार्ट इंक ड्राई हो जाए तो थोड़ा सा डिफ्यूज कर जाए। बट रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज लीस्ट। जहां तक लिक्विड्स में डिफ्यूजन की बात है, दैट वेरीज फ्रॉम लिक्विड टू लिक्विड। अब मान लो फॉर एग्जांपल हम कोई दो सॉलिड लें, दो लिक्विड लें, एकदम से मिक्स करें, मिक्स हो जाएंगे। मान लो कोल्ड ड्रिंक और पानी को मिक्स करना है, या मिल्क और कोल्ड ड्रिंक को मिक्स करना है, मिल्क और वाटर को मिक्स करना है, आसानी से मिक्स हो जाएंगे एट देयर ओन। आप एक ग्लास पानी लो, उसके अंदर इंक ड्रॉप करो, तो यू फाइंड इंक विल कीप ऑन, इंक पार्टिकल विल कीप ऑन मूविंग एट देयर ओन विदाउट एनी स्टरिंग। बट व्हेन यू पुट हनी इन दैट, हनी के केस में जो डिफ्यूजन होगा दैट विल बी लिटिल स्लोअर। एम आई क्लियर? Honey particles will not move there at all. It will take longer time, or you will have to stir it, or you will have to heat it. So in liquid also diffusion takes place, but it is more as compared to solids. Liquid में diffusion है, liquid का liquid में diffusion है। Liquid में एक बात याद रखो, solid भी diffuse कर सकते हैं, liquid भी diffuse कर सकते हैं, और gases भी diffuse कर सकते हैं। In liquids, all the three states of matter can diffuse. But rate of diffusion will vary from material to material. It will depend upon various kind of material, and it also depends upon temperature. In one of the activities we will understand, मान लो for example आपको शुगर को पानी में डालना है, शुगर अपने आप ही मिक्स हो जाएगी, but it will take time. But उस शुगर को आप स्टर करोगे तो कम टाइम होगी, उसी वाटर सोल्यूशन को जब हीट करोगे तो it will take less time. So rate of diffusion increases with increase in temperature, and it also depends upon nature of material. But in case of gases, rate of diffusion is maximum. क्यों maximum है? उनके अंदर interparticle space ज़्यादा है, उनके अंदर interparticle space क्या है? बहुत ज़्यादा है, और interparticle force of attraction कम है, और moreover अभी जो last point हम पढ़ने वाले हैं, kinetic energy. kinetic energy उनके particles के अंदर गैसेस के अंदर मैक्सिमम होती है, जो ट्राई टू मूव वेरी क्विकली। दैट इज व्हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस इज मैक्सिमम। तो 3 कारण है क्यों डिफ्यूजन मैक्सिमम है गैसेस के अंदर। नंबर 1, उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के अंदर आसानी से मिक्स हो सकते हैं, एंड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिफ्यूजन in case of solids is least, and examples are very rare. In liquids, diffusion can take place, all the states can diffuse into it, and rate of diffusion varies from matter to matter, as well as it also depends on temperature. और gases के अंदर जो diffusion होता है that is maximum. And now last, kinetic energy. अब solids के particles tightly packed हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी लीस्ट है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो दैट इज व्हाई उनकी काइनेटिक एनर्जी उनके पार्टिकल्स की बहुत कम है। लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स क्योंकि लूजली पैक्ड है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक है, दे टेंड टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर वेरी क्विकली, मोर ओवर देयर डेंसिटी इज आल्सो लेस, आसानी से मूव कर सकते हैं, दैट इज वाई देयर kinetic energy is maximum. So in solids, it is solid and released, in gases it is maximum, whereas in liquids kinetic energy of particles is more than solids but less than gases. So now you go through your notes, आपको सारे उसके अंदर से ये सारे points बिल्कुल मिलेंगे, and now you can go through that. Also read the activities in your book. Tomorrow we'll discuss that, right? Later of you. Thank you so much.